Good morning, students. The topic for my today's presentation is microbes in human welfare. मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव. So, what are microbes? Those tiny living organisms which can be seen with the help of microscope only. For example, bacteria, virus, algae, fungus, and protozoa. So in this slide on left hand side you can see the pink color rods on the top. This is the shape of bacteria, rod shaped bacteria. In B you can see the rounded, that is the cocci shape of bacteria, and on left and right hand side there is bacteriophage. This is bacteriophage. This is made up of virus, basically bacteriophage, that virus that can kill the bacteria. So icosahedral head, collar, tail, plate, pins, you can see. And then this is the icosahedral head of adenovirus. So these are the viruses, and here you can see the bacteria with flagella, and a rod shaped bacterium showing flagella. And on C you can see the rod shaped tobacco mosaic virus known as the TMV, tobacco mosaic virus. These are also rod shaped virus. In this slide you can see the colonies of bacteria in A. These colonies are tiny colonies, that is milky in color or creamish in color, that is in on a petri dish. Petri dish containing the media, the name of media is Newton agar. And in B you can see the fungal colony growing in a petri dish. The shape of fungal colony and the bacterial colony are entirely different. So this is fungal colonies give you a shape of cottony growth. And then is the, now coming to the microbes in household products. जैसे बेटा हम कॉमनली, आपको पता है कि हम माइक्रोब्स जो है उनको डेली यूज़ कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को हम डेली खा रहे हैं. सो इन दिस वी विल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मीन्स इन आर फूड. So we will take an example is the lactobacillus. You all are aware that in dahi there is a bacteria, the name of that bacteria is lactobacillus or commonly known as the lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में. और कर्ड में कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो क्या एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड क्या करेंगे, कोएगुलेट करेंगे जो भी मिल्क में प्रोटीन्स हैं, और कुछ एक प्रोटीन जो है उनको वो डाइजेस्ट करेंगे. सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू अ फ्रेश मिल्क, उसको जो हम स्टार्टिंग में इनोकुलम या स्टार्टर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इनोकुलम. जो हम दूध में थोड़ा दही ऐड करते हैं, दही बेसिकली कंटेनिंग द lactic acid bacteria, not one or two bacteria, millions of bacteria. So which under suitable temperature, it should be near about suitable means optimum temperature around 37 degrees centigrade, convert the milk into curd, and which also improve the nutritional quality because in the curd there is present a vitamin B12. So you have to take it daily. So in our stomach the lactic acid bacteria play a very beneficial role in to kill the disease causing bacteria. So next is the many food products are prepared with the help of fermentation. fermentation को हम जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं खमीर. जैसे बेकर यीस्ट है, जो बेकर यीस्ट होता है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को हम क्या करते हैं उसकी फर्मेंटेशन करते हैं. फर्मेंटेशन किससे करते हैं, यीस्ट से. यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक है जिनको कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे. फर्मेंट करने से क्या होएगा, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है या बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल toddy in South India, that is prepared by fermenting the saffron palms. And similarly microbes also ferment
फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स एंड मेक इट अ फूड। और इनसे क्या होता है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है सोयाबीन की और ज़्यादा हो जाएगी, फ़िश की और ज़्यादा हो जाएगी। आपने चीज़ खाया होगा, चीज़ इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। एंड चीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं विद करेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे स्विस चीज़। स्विस चीज़ में क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल गिव द big holes in the Swiss cheese by the bacterium. The name of that bacterium that will help in the preparation of carbon dioxide in the cheese, that is the Propionibacterium shermani. और एक चीज़ का नाम है रॉगरफोर्ड चीज़। जो रॉगरफोर्ड चीज़ है उनको उसको बनाया जाता है, इसकी राइपनिंग करते हैं हम एक फंगस से। फंगस इसके ऊपर ग्रो करती है, उससे क्या होएगा, इसकी फ्लेवर जो है वो एनहांस होती है। So these microorganisms that were present in the food industry, most of the products that is prepared by the fermentation with the help of microorganisms। सबसे ज़्यादा microorganism कौन सा यूज़ होता है, yeast। The name of that yeast is the Saccharomyces cerevisiae। Now coming to the industrial products, इंडस्ट्री लेवल पे माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री लेवल्स में किस तरह से, इंडस्ट्री लेवल मीन्स एट अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें कैसे हेल्प करेंगे। इसमें दो प्रोडक्ट है, एक है विवरेजेस और एक है एंटीबायोटिक्स। सो विवरेजेस और एंटीबायोटिक्स को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, देयर इज़ अ लार्ज स्टेनलेस स्टील वेसल्स। उन स्टेनलेस स्टील वेसल्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या है, वो वाले स्टेनलेस स्टील वेसल्स जिनके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द फर्मेंटर्स इन द स्लाइड। सो दीज आर द फर्मेंटर्स, दीज आर द स्टेनलेस मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, राइट। सो फर्मेंटर में हमने कौन सी बिवरेजेस बना सकते हैं, माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट। अगेन हेयर इज़ अ यीस्ट। यीस्ट कौन सा है, उसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। उससे हमने बना सकते हैं वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रन। एंड फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग। और इसको हम बोलते हैं, इस यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रूअर यीस्ट, क्योंकि ये ब्रूअर इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसलिए हम इसको ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं। और इससे प्रोडक्शन किसकी होती है, इथेनॉल की। इथेनॉल की प्रोडक्शन ही इसको हम यूज़ करते हैं फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन के बेसिस पे हम कुछ एक फ्रूट जूसेस में भी इसको हम यूज़ करते हैं टू फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द जूस। And other product is that is used at industrial level is the antibiotics. Name any antibiotic. The first, what was the first antibiotic? Okay, we will come to the definition of antibiotic. Anti means क्या होता है, against. Bio means living. So लिविंग के अगेंस्ट जो चीज़ जो केमिकल है उसको हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। सो द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज एंटीबायोटिक्स आर chemical substances which are produced by some microbes. I repeat, these are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. आप ये कह लो कि वो वाले केमिकल जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आएंगे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करेंगे। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, दैट द नेम ऑफ दैट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। तो इसका जो फर्स्ट टाइम हु वाज द डिस्कवर ऑफ द पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming was undergraduate student. He was working on a bacteria. The name of bacteria was Staphylococcus bacteria, and the discovery of this antibiotic was a accidental. You can say it was an accidental discovery. What he have saw, he observed that a mold growing in one of his अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड द स्टाफाइलोकोकस। जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, वो मिल्की या क्रीमी टाइप जो कॉलोनीज थी,
तो इसने व्हाट द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर सॉ ही सॉ दैट कि वो जो पेट्री डिशेस में कुछ एक बड़ी कॉलोनी जो मैंने करो जब वे अपने फंगल कॉलोनी देखी है तो उसके अंदर यहाँ पे वो फंगल कॉलोनी ग्रो हो गई है, उसके आसपास उसने देखा कि कोई भी वाइट कलर की कॉलोनी, मतलब दोनों कॉलोनी जो अभी अपने पेट्री डिश में देखी हैं, हाँ, जैसे ये वाइट कॉलोनीज जो हैं इसके इसी इसी प्लेट में यू इमेजिन कि ये जो फंगल कॉलोनी है इसके अंदर ग्रो हो गई, ठीक है, ए के अंदर ग्रो हो गई। तो उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ पे जो फंगल कॉलोनी है, तो यहाँ पे जो फंगल कॉलोनी है यहाँ पे इसके आसपास जो है कोई भी वाइट कॉलोनी वो ग्रो नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब दूर डिस्टेंस पे तो है लेकिन जो उसके जोन ऑफ उस जिस एरिया में ये फंगल ग्रोथ जो है बाकी कॉलोनीज को नहीं ग्रो करने दे रही है ये वाली कॉलोनी, तो हम उसे बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। जोन ऑफ इनहिबिशन क्या है, वो अलाउ नहीं कर रहा या फिर उस जोन ऑफ इनहिबिशन में कुछ एक केमिकल है जो कि नहीं अलाउ कर रहा है फॉर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। उस केमिकल को क्या उसने नाम दिया, पेनिसिलिन। सो ये जो कॉलोनी जो फंगल कॉलोनी की मैं बात कर रही हूँ, ये कौन सी कॉलोनी थी, ये एक मोल्ड था, इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस मोल्ड से एक्सट्रैक्ट की गई, पेनिसिलियम नोटेटम। किसने की, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया, द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया वॉज स्टेफाइलोकोकस। सो उसके बाद ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी उसमें इस जो एंटीबायोटिक ने बहुत ज़्यादा हेल्प की टू टू द सोल्जर्स। और फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, they were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. So then is the पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बाद में अभी तक भी जो है बहुत सारे बैक्टीरिया से, फंगस से, इवन वायरसेस से, एल्गी से जो है जो एंटीबायोटिक्स हैं, इवन प्लांट से एंटीबायोटिक्स जो मिल रही हैं उससे क्या किया है, क्या हो रहा है, ट्रीट द डेडली डिजीजेज जैसे प्लेग, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया, गलकोटू, and then is the leprosy, that is kush stroke, that can be used to kill millions of deadly bacteria with the help of these antibiotics. So in the industries there were one product was alcoholic beverage and the other one was the antibiotics. Next is the chemical enzymes and other bioactive मॉलिक्यूल्स। सो कुछ एक केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स की हेल्प से बना सकते हैं। इसमें जैसे केमिकल्स में जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं और एंजाइम्स हैं। एग्जाम्पल हैं एसिड प्रोड्यूसर जो अस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, इसे क्या हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, सिट्रिक एसिड। एक बैक्टीरिया है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, उससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसिटिक एसिड। देन इज द क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, ये एक बैक्टीरिया है, इससे बोटाइरिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस से हम लैक्टिक एसिड जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे या लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो yeast, again coming to yeast, the Saccharomyces cerevisiae used for the commercial production of ethanol, इथेनॉल मीन्स वीवरेज या इसको हम अल्कोहल कह सकते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स, लाइपेजिस। लाइपेजिस क्या करते हैं, जो लिपिड्स को डिग्रेड करते हैं। लाइपेजिस आर यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, जो सर्फ आ रहे हैं आजकल जो डिटर्जेंट है वो इसलिए कॉस्टली है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लाइपेजिस एंड प्रोटीएजिस। प्रोटीएजिस मीन्स जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। दे आर हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, कपड़ों के ऊपर जो ऑयल की स्ट्रेन्स या प्रोटीन्स के जो दाग है उनको अच्छी तरह से साफ कर सकता है। तो ये एंजाइम्स जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स वी कैन प्रिपेयर्ड। इसी तरह से जैसे बॉटल्ड या
कैंड या पैक्ड जूस आते हैं, उन जूसेस को क्लियर करने के लिए या साफ़ करने के लिए भी हम क्या है बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं. दोज बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल. दिस इज़ बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस. और एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज. दिस इज ऑल्सो एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस. सो स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेसिस को प्रोड्यूस करता है, और इसको हमने मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करके क्या बनाया है, क्लॉट बस्टर, ब्लड बस्टर. इसको हम बोलते हैं क्लॉट बस्टर. क्लॉट क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है. अगर ये क्लॉटिंग हमारे हार्ट के पास या हार्ट की जो हार्ट को ब्लड लेके जाने वाली वेन्स है उनमें आ जाता है, आर्टरी और वेन्स में कहीं भी आ जाता है, तो उससे क्या होएगा, हार्ट अटैक हो सकता है. तो उस क्लॉट को डिग्रेड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज. सो दिस इज़ द टू क्योर द पेशेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक. ब्लड वेसल्स में क्लॉट को ख़त्म करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेसिस यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, you have learned about the good effects of good bacteria in the industry, in the food, in the form of beverages, in the form of enzymes, in the form of chemicals, antibiotics, etc. For further query, please feel free to call me up anytime. Thank you.